Hello everyone. So today question is 1590 make some divisible by p. In this question we have given an array of positive integers, that is nums, and we have to remove the smallest subarray such that the sum of remaining element is divisible by p. Means if we remove, let's suppose in example 1 we have to remove, let's suppose we have to remove 4, then the sum of remaining element is 3 plus 1 plus 2, that is 6. 6 divisible by 6, that is possible. So we have to find the smallest subarray. In this case the smallest subarray is 4. Also we have to remove the 3 1 and the remaining element is 4 plus 2, that is 6 also. So in this case we have to remove the smallest possible subarray. So also it is not allowed to remove the whole array. Means not allowed to remove the whole array because whole array sum is 0. So it is not allowed to remove the whole array. Okay. If we remove, if any case we have to remove the whole array, that is not possible. So in this case return -1. So let's understand the question in deeply. So in this question we have to given a nums where the element is 3 comma 1 comma 3 comma 2. Also we understand the question first. What is, we have to remove the smallest. Let's suppose we remove the 1 and also p equal to 8 and p equal to 8. Let's suppose we remove the that is not a correct example to discuss. Let's suppose uh, 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 okay. uh, let's suppose example is 3 comma 6 comma 3 comma 3. Okay, that is nums. And also p equal to 6. So we have to find the smallest, number that we removed, so that the sum is divisible by 6. First we have to calculate the sum. What is sum? Also in this question we have to remove how many elements. Let's suppose we have to remove 0 1 2 and -1. Means we have to remove 0 elements, means empty. Means the sum of whole array is divisible by p. So in this case we have to not remove the any element, means removing 0 element up to n minus element. Also in n element we have to not return means in total, means we have to not remove the whole array. So n is not possible removing. So let's suppose in this case if we remove the 6, then remove this if we remove the 3, last 3, I was confused. Okay, let's calm, discuss in silently, or calmly. So first let's suppose we have to remove the 3, then the remaining element is 6 3 3, and the whole sum is divisible by p. Okay, that is feasible. Yes, also we have to remove the last last two elements, then the whole, this is what is this, what are I doing? Let's suppose we have to remove the first two, then the whole, that is 3 comma 3 is also divisible by p. So in this case we have to remove two elements. In this case we have to remove first element, that is 3. So we have to remove the minimum. Our minimum at 0, minimum is 0. So I hope you understand the question. We have to remove the minimum elements. So how to remove the minimum elements? To removing the minimum elements, so how to approach this question? First approach is brute force. What is brute force? Brute force is generally, question is what is stating? Question is stating remove the subarrays. What is subarrays? Subarrays means subarray. Subarrays means subarray. So to find the removing subarray, we have to generate the all possible subarray.
all possible subarray, all possible subarray. After that we check if that subarray is removed. Let's suppose we have to remove the 3, 3, then the remaining element sum is divisible by p or not. If the remaining element sum is divisible by p, is modulo equal to 0 or divisible by p, then we have to consider the answer. The answer is equal to minimum of all possible. All possible. So minimum of all possible. So in this case, what is the time complexity? Time complexity is of n square. Why of n square? Because generating the all possible subarray is n square. So overall time complexity is overall n square. So we have to find the optimal solution. So how to find optimal solution? To find the optimal solution, what we considered in the question. Uh, to find the optimal solution, we have to not finding the all subarrays, because all subarray finding is time consuming. So how to find optimal? So before discuss, I first suggest everyone to do the question what is subarray sum divisible by k. That is basic understanding of this question. Let's I discuss what is. So in this question means I first discuss this subarray sum divisible by k, basically an upper portion. In in subarray sum divisible by k. In this question we have to find the number of subarrays. Number of subarrays. Uh, uh, subarray array. Number of subarrays that is divisible by k. Okay. So why I am discussing this question in this question, because it's basic. So in this question we have to find the subarray. In optimal solution, what we have to do, if you don't do the optimal solution of this question, I recommended to do first, then jump to this question. So in this question, we have to find the number of subarray. What is the approach? Approach is, let's suppose we have example 535. In this approach, if we encounter the sum here and also k sum minus k, मतलब sum 1 sum 2, if sum 2 minus k also we have to visited previously, then we have considered that then this is our required sum, that is the required sum value is k. मतलब समझ में नहीं आया, बताता हूँ देखो, अगर हमने पहले सम हमें मिल गया है, मतलब 8 मिल गया है, और अब अगर हम क्या मिलेगा इधर 16, अगर हम 16 में से के मतलब 8 ही होगा, अगर 16 में से हम 8 घटाएंगे तो इसका भी सम 8 ही होगा ना, समझे कुछ? ये थोड़ा सा सोचने की बात है। अगर अरे ये मान लो यार सम 1 प्लस के होगा, सम 1 प्लस के ही होगा, तो सम 2 माइनस सम 1 क्या होगा, के ही तो होगा ना, बस यही वाली बात है। सो इसका अपने वाले क्वेश्चन से क्या रिलेशन है, बस इसमें यही रिलेशन है कि हमें पहले कुछ मिल गया है, अगर बाद में कुछ मिला है तो उसमें से कुछ घटा के वो मिल गया है, तो वो कर लेना पूरा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा मैं। तो अब इस क्वेश्चन में क्या करें, इस क्वेश्चन में भी हमारे सिमिलर अप्रोच है। सिमिलर अप्रोच क्या है कि इस क्वेश्चन में हमें अगर मॉडुलो मिल गया है, मतलब इतने का मॉडुलो अगर मान लो 2 है और बाद के भी मॉडुलो 2 है, तो कुछ समझे बेटे, तो हम समझ पाएंगे कि इतने का
जो मॉडुलो होगा ना जीरो होगा। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मतलब इतने का मॉडुलो जीरो होगा। तो अब ये ये पहचान लिया हमने। तो मतलब हमने ये पहचान लिया ना, इतने का मॉडुलो जीरो होगा। पर हमें तो ऐसा चाहिए था, क्वेश्चन उल्टा है थोड़ा सा। हमें हमें ऐसा सवेरे फाइंड नहीं करना कि जिसका मॉडुलो, अरे ये क्या हुआ, क्वेश्चन है हमारा कि ऐसा सवेरे फाइंड नहीं करना कि जिसका मैक्सिमम, सवेरे फाइंड नहीं करना कि जिसका वो होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा है उल्टा। क्वेश्चन अब ध्यान से सुनना, अब यही मेन पॉइंट है। क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें वो रिमूव करना है जिसकी वजह से बाकी एलिमेंट्स का जो सम है वो वो आ जाए, मतलब डिविजिबल बाय, जो भी p है वो p से डिविजिबल आ जाए बाकी एलिमेंट्स का सम, अगर हम कोई भी सब रिमूव करेंगे। अब पिछले केस मतलब जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे इधर, अब ये मैक्सिमम फाइंड कर रहे थे, समझे कुछ। अब हमें ये रिमूव करना है, वो भी मिनिमम रिमूव करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो हम मान, इसको करने के लिए हमें एक मान लेते हैं। देखो हमारा यहाँ तक का मॉडुलो आया कुछ m, अब बाकी मॉडुलो आया t। अब देखो, अब हम t में से m घटाएंगे, हम प्लस p कर देते हैं क्योंकि ये भी सब मॉडुलो चल रहा है, इधर मॉडुलो मॉडुलो चल रहा है, तो ये माइनस में भी आ सकता है। तो माइनस को एडजस्ट करने के लिए हम p लिख दिए। अगर पॉजिटिव होगा तो t माइनस m पॉजिटिव होगा तो चल जाएगा, और इसका मॉडुलो निकालेंगे p। देखो थोड़ा सा ध्यान रखना, अब देखो ये हमें चेक करना है। अब t माइनस m मॉडुलो p, अब ये आ गया, मतलब दोनों मॉडुलो सेम है। अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ मतलब t माइनस m मॉडुलो p जो डिविजिबल बाय होगा p से, मतलब इतना एरे तुम्हारा p से डिविजिबल होगा। ये तो हो गया बेसिक, पर हमें ये नहीं चाहिए ना डिविजिबल, ये तो नहीं चाहिए, हम तो इसको रिमूव चाहते हैं। तो हम रिमूव चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक मिनट। हाँ तो अब बताता हूँ मैं, देखो रुको, अच्छी तरह से बताता हूँ, वो थोड़ा भूल जाओ। देखो अब देखो, मैंने क्या बताया था कि अगर देखो ये सम, देख शुरू से ध्यान देना, अब सब भूल जाओ पिछला, क्योंकि अब दोबारा से अच्छी तरह से बताऊंगा। देखो सम टू आ गया, अगर सम टू सम वन प्लस के होगा, मतलब सम टू इक्वल टू सम वन प्लस के होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, ये एलिमेंट के बराबर होगा। ये तो हो गया कि हमने वो दूसरा क्वेश्चन डिस्कस किया है, उसमें ऐसा पैटर्न होगा। अब देखो, अब इस क्वेश्चन में क्या होगा कि मान लो इस क्वेश्चन में आया तुम्हारा अरे कुछ भी मान लो यहाँ मॉडुलो आ गया तुम्हारा 2 आ गया, और आगे भी 2 आ गया, तो इतने इतने का सम होगा ना, वो मतलब डिविजिबल बाय होगा, मतलब p से यहाँ p का मॉड यहाँ 2 आया, यहाँ 2 आया, तो इधर का वो होगा ना, उसका डिविजिबल बाय होगा p से। अबे यार कैसी बात कर रहे हो तुम, होगा ना, नहीं माने, ठीक है बताता हूँ, रुको एग्जांपल देख लो, यही देखो, यहाँ p इक्वल टू क्या लू 5 3 8 ले लेता हूँ। देखो यहाँ 0 आया तेरा तुम्हारा, क्योंकि यहाँ तक का वो लिखा रहेगा, तुम सम लिखा रहोगे और p से मॉड करके 0 आ गया, और यहाँ का क्या आएगा, यहाँ भी 0 आएगा। अब देखो 0 0 आ गया सेम सेम, तो यहाँ का भी वो होगा ना, समझे, ये भी डिविजिबल बाय होगा ना। अरे यार समझ जाओ यार, थोड़ा सा भावना है। तो अब देखो, हाँ अब ये तो हो गया हमारा, पर क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि हमें रिमूव करना है कुछ सच दैट कि वो पी से मॉडुलो हो। हाँ तो हम मान लेते हैं कि ओवरऑल इसका मॉडुलो आया है 2 आया है। अगर हमें कहीं भी 2 मॉडुलो मिल जाता है, मान लो हमें 2 मॉडुलो मिल गया, अरे मान रहा हूं मैं, ऐसे कुछ वो नहीं है,
टू मॉडलो मिल गया, हम इसको रिमूव कर देंगे भाई साहब, तो बाकियों का मॉडलो हो गई। तो यही तो है मेन पॉइंट, समझे। तो इस क्वेश्चन में हमें निकालना है 8 का सबसे मिनिमम, इसमें तो 8 में तो सब हो जाएगा। अगर इसको हटा देता हूँ, बताता हूँ। देखो 3 5 3 8, तो अब देखो इसका ओवरऑल मॉडलो क्या होगा, ओवरऑल मॉडलो निकालो 8 और 8, इसका ओवरऑल मॉडलो 3 होगा। अगर हम चाहें कि कोई भी 3 मॉडलो रिमूव कर दें, मतलब कोई भी सब एरे का 3 मॉडलो रिमूव कर दें, सब एरे का 3 मॉडलो रिमूव कर दें, तो ओवरऑल तो तुम्हारा पी से वो होगा ना 8 से मतलब डिविजिबल। तो हम मान लेते हैं इसको रिमूव कर दिया 3 को, तो हो गया ना। ओ माय गॉड, इसको रिमूव कर दिया तो ओ माय गॉड, तो हो गया। बस यही क्रक्स है इस क्वेश्चन का। अब देखो हमें बीच का फाइंड करना है, बीच का फाइंड करना है, मतलब पिछला 0 आना चाहिए मॉडलो और आगे का 2 आना चाहिए। मतलब ये समझो थोड़ा सा, मतलब पिछला 0 आना चाहिए, आगे का 2 आना चाहिए। इससे क्या सिग्निफिकेंस दिख रहा है, मतलब यहाँ तक का मॉड 2 है इस क्वेश्चन में। तो हमें ये रिमूव, मतलब 2 चाहिए और 2 मिल गया। और 2 कैसे मिलेगा कि यहाँ तक का वो आएगा, जो भी तुम्हारा मॉडलो उसमें से, मतलब जो भी मॉडलो आएगा, मान लो 4 आ गया, उसमें से तुमने ये लिखा रहा -2, तो ये 2, मतलब अरे यार रुको बताता हूँ मैं अच्छी तरह से। हाँ 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 हाँ, हाँ, ठीक है 3535, क्यों ले रहा हूँ मैं ये एग्जाम्पल। हाँ देखो, अब देखो हमें मान लो 2 आया ओवरऑल, मान रहा हूँ मैं कोई पी होगा, ओवरऑल मॉडलो उसका 2 आया, पर हमें 2 थोड़ी चाहिए, हमें तो पूरा से डिविजिबल चाहिए, तो 0 चाहिए। तो हमें मान लेते हैं इसका 2 आ गया, तो इससे पहले जो भी होगा ना कुछ होगा, मतलब इतने एलिमेंट्स का माना है हमने, मॉडलो 2 आया है, इतने एलिमेंट्स को माना, मान लो इस यहाँ तक के एलिमेंट का 4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ तक के एलिमेंट्स का 4 आ गया और यहाँ पे कुछ आया x, तो अब क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, जो कि x, मतलब यहाँ तक का सम आया ना, सम ओवरऑल, और यहाँ तक का सम आया ओवरऑल मॉडलो करके, जो सबका वो प्लस किया 3 + 5, फिर मॉडलो कुछ 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 कुछ, तो मतलब सम के केस में देख रहा हूँ, यहाँ तक का सम आया, यहाँ तक का सम आया मॉडलो करके। तो अब x में से हम 4 माइनस करेंगे, जो हमारा 2 के इक्वल इक्वल आ गया। ओ माय गॉड, ये समझो तुम, यही क्रक्स है इस क्वेश्चन का, ध्यान से सुनो। x-4 करा हमने, अगर ये हमारे ओवरऑल मॉडलो के इक्वल आ गया, तो हम करेंगे कि इसको रिमूव कर दो, इसको रिमूव कर दो। अब समझते हैं हम, जो जो एग्जाम्पल है, अरे कोई बात नहीं, देख लेते हैं थोड़ा बहुत। हाँ चलो देखो, अब इस क्वेश्चन को समझते हैं, सारे क्वेश्चन बता दूंगा मैं, चिंता मत करो, बस थोड़ा पेशेंस। 3 6 3 5 2, देखो क्वेश्चन है 6 3 5 2, अच्छी तरह समझते रखो, इसको बढ़ाता हूँ। हाँ देखो क्वेश्चन है तुम्हारा, अब एग्जाम्पल है 6 3 5 2। देखो एक बार समझ गए ना, कोड लिखना आसान है, और p इक्वल टू दे रखा 9। अब देखो हम ओवरऑल मॉडल निकालते हैं पहले, ओवरऑल मॉडलो वो क्या होगा, ओवरऑल 6 और 9, ये 0 हो गया और ये 8 हो गया, बस 7 हो गया, ओवरऑल मॉडलो 7 हो गया, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है कि इस पूरे में कहीं 7 आ रहा है मॉडलो, 7 आ रहा है तो उसको रिमूव कर दो। तो इस पूरे में 7 का ही मॉडलो दिख रहा है तुम्हें, ये दिख रहा है ना, इसको रिमूव कर दो तो बाकियों का होगा ना। अब इसको करेंगे कैसे, देखो हम यहाँ का मॉडलो निकाला 6 आ गया, आगे मॉडलो निकाला 0 आ गया, क्योंकि 6 + 3 मॉडलो निकालते गए, आगे 5 आ गया, फिर आगे 7 आ गया, 7 आ गया। तो हम चेक करते रह रहे हैं कि जो हमारा मॉडलो है, मतलब करंट जो है 0 - 7 + 9, 9 क्योंकि अरे माइनस है ना, क्योंकि हम स्टोर करेंगे कहीं मॉडलो, मतलब मॉडलो तो पॉजिटिव आएगा ना, हम इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम p प्लस कर दे रहे हैं और मॉडलो p ले रहे हैं, तो 2। देखो शुरू शुरू में 6 आया, 6
एक तो मैप बनाने की जरूरत पड़ेगी, हमें स्टोर कर लेना हर प्रीवियस का मॉडलो कितना आ रहा है, प्रीवियस का मॉडलो स्टोर करना पड़ेगा। देखो ध्यान से सुनना, प्रीवियस का मॉडलो स्टोर करते रहेंगे तो अब हमें पिछले से चेक करना है ना, तो प्रीवियस का मॉडलो स्टोर करना पड़ेगा। इससे चेक करेंगे तो इससे चेक कैसे करेंगे, प्रीवियस का मॉडलो स्टोर होना चाहिए, उसके लिए मैप होना चाहिए। और देखो 6 का, देखो उसके लिए क्या करेंगे, 6 का मॉडलो, 6 का वो करेंगे, 6 स्टोर है शुरू में। देखो कोई भी स्टोर नहीं है मैप में, ये मैप है हमारा, शुरू में नल है। अब बताता हूँ शुरू से, देखो ध्यान से, शुरू से पहले लिखा रहा 6, 6 आया, 6 का मॉडलो 9 से लिखा रहा, कुछ नहीं आया, 6 ही आया। तो 6 की वैल्यू हम इंडेक्स स्टोर कर रहे हैं इधर, क्यों कर रहे हैं वो बताएंगे। अभी सोच कर लो। फिर आगे लिखा रहा, आगे 6 और 3 9 आया, 9 आया, ठीक है। 9 का मॉडल 9 से लिखा रहा 0, और 0 को वैल्यू यहाँ स्टोर कर लिया हमने 1 पे। फिर आगे आया, फिर 6 और 3 और 5, फिर 5 आया, 5 आया, उसका हो गया 2 से, फिर 7 आया, हो गया 3 पे। ये तो हमने स्टोर कर लिया। हाँ, स्टोर कर लिया, या हम चेक करते रहेंगे प्रीवियस से। देखो अब इस पे आया, देखो हमें चाहिए कितना चाहिए, 7 चाहिए, 7 चाहिए। तो हम चाहेंगे कि 7 मिल जाए, कहीं कैसे भी मिल जाए। तो हम चाहेंगे कि जो ओवरऑल मॉडुलो है ना, और करंट मॉडुलो मतलब 6 माइनस 7 प्लस पी, ये भी मॉडुलो इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों किया मैंने, मतलब माइनस कर दिया ना ये मॉडुलो, मतलब पहले जितना भी मॉडुलो आया, मतलब ओवरऑल मॉडुलो में से ये जितना मॉडुलो बनेगा वो माइनस कर दिया मैंने। मीन्स इतना ओवरऑल मॉडुलो 7 है, और 7 कहीं मिल गया, अब ये माइनस कर दिया, तो ओवरऑल का आंसर होगा ना, ठीक है। तो 7 हमें चेक करना है, तो क्या होगा, 7 में से मतलब जितना करंट आया, 7 में से मान मान मतलब प्लस तो करना ही पड़ेगा यार पी तो 7 माइनस 6 प्लस पी, ये कर लो, या 6 माइनस 7 प्लस पी, और 6 माइनस 7 प्लस पी, ठीक है, क्योंकि करंट से चेक करते रहने तो ये ठीक है, ये हटाओ, ये नहीं होगा। तो तो हम चेक करेंगे 6 माइनस 7 प्लस 9 मॉडलो 9, अगर पहले प्रेजेंट है तो उसको रिमूव कर दो, उसको रिमूव करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसको मिनिमम लेते रहेंगे, समझे, समझ जाओ यार थोड़ा सा तो। देखो 6 माइनस 7 चाहिए, और प्लस 9 कितना आया इसका, तो 8, 8 पहले मिला है हमें, 8 पहले नहीं मिला, तो कुछ नहीं मिला, तो हमें तो शुरू में अपडेट कर देंगे 6,0, ये मिल गया हमें, ठीक है। फिर आगे 0 पे आए, 0 माइनस 7 प्लस 9, मॉडलो 9 करा, कितना आया, 2 आया, 2 पहले मिला है, नहीं मिला, तो हम इसको पहले 0 से अपडेट कर दें, 0 का इंडेक्स है वो। अब फिर आया 5, अब फिर क्या होगा, 5 माइनस 7 प्लस 9 कितना हो गया, 7 आ गया, 7 मॉडलो 7, 7 मॉडलो 9, 7 हमें पहले कभी मिला है, नहीं मिला, तो हम अब ये स्टोर करना है 5, जो वैसे वैल्यू होगा, पहले 5 आएगा ना, 5 टू इंडेक्स पे, फिर आया हमारा 7, 7 माइनस 7, 7 माइनस 7 प्लस 9 का मॉडलो लिखा रहा 9 से, जो आया 0, तो 0 हमें मिला है कहीं, मिला है, इधर मिला है 1 इंडेक्स तक, मतलब ये जो भी इंडेक्स होंगे ना, वो होगा तुम्हारा वो होगा तुम्हारा वो मतलब रिमूव होगा ना, बस यही है, रिमूव कर देंगे, मतलब 0 मिल गया है, 7 माइनस 9 प्लस 0 आ गया, अब 0 हमें पहले मिला है, ओ मिला है, उसका इंडेक्स ये है, तो करंट इंडेक्स क्या है, 3, 3 माइनस 1 2, मतलब 2 एलिमेंट्स, 2 लेंथ का एरे मिल गया। ये थोड़ा सा कचरा कर दिया मैंने, पर थोड़ा सा यार क्लीन करना चाहिए था, पर ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो समझ तो गए तुम थोड़ा सा, ये थोड़ा सा ड्राई रन करने की जरूरत पड़ेगी, वीडियो लंबी हो गई।
24 मिनट हो गए यार। चलो अब कोड करते हैं इसका। देखो लंबी वीडियो होने का मतलब नहीं है कि थोड़ा सा समझ में आना चाहिए बस। अब देखो थोड़ा सा खुद करोगे ना, अब समझ में आ ही जाएगा, आ जाएगा। और हाँ, शुरू शुरू में हम जीरो को -1 से करेंगे, ये बता देता हूँ। देखो शुरू शुरू में हम मैप में जीरो डालेंगे, उसकी वैल्यू -1 लेंगे, -1 इंडेक्स मतलब जीरो पहले ही आ चुका है ना, ये समझो। मतलब जीरो सम तो होगा ही ना पहले, तो जीरो मॉडलो भी होगा पहले। बस यही बात है, और कुछ नहीं है इसका लॉजिक। तो जीरो आया और बाद में कभी जीरो आ गया तो मान इसका सम मतलब मॉडलो जीरो आ गया तो मान लेंगे कि ये पूरा एरे है ना, उसका मॉडलो वो हो गया। तो इस जीरो को अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना, हम इसको रिमूव करें तो वो आ जाए। तो इसको -1 से करना पड़ेगा। अरे क्यों करना पड़ा? अरे यार शुरू शुरू में तो मॉडलो जीरो ही होगा, ये समझो बस तुम, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। शुरू शुरू मॉडलो जीरो होगा और बाद में मॉडलो मतलब जीरो मिल भी गया तो इससे क्या सिग्निफिकेंस, मतलब ये समझो यार, शुरू में सम जीरो होगा, उस क्वेश्चन में था ना कि -1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। शुरू शुरू में जीरो होगा सम, मतलब इंडेक्स -1 होगा, ये इंडेक्स 0 1 इंडेक्स 2, इसको भूल जाओ। तो ओवरऑल जीरो होगा ना सम। तो कैसे चेक करेंगे? तो पहले जीरो आया है किस इंडेक्स पे, तो इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे? तो 2 -1, 2 माइनस ऑफ -1, मतलब 2 इंडेक्स है और ये इंडेक्स जीरो पहले आया है, तो लेंथ 3 आ जाएगी, 3 लेंथ का मिल गया। बस ये लेंथ निकालने के लिए, और क्या जीरो करा है। तो अब इसको कोड से अच्छी तरह समझते हैं, ध्यान से। हाँ देखो, शुरू शुरू में तो हम लेंथ निकाल लेंगे जो हमारे उसकी है, वेक्टर की। ये तो कोई वो बात बड़ी है। तो अब आगे क्या करेंगे, ये तो निकाल लिया ना हमने। अब हम ओवरऑल मोड लो निकालेंगे हम। ओवरऑल मोड, ओवरऑल मोड क्या होगा? ओवरऑल मोड क्या होगा पता नहीं, जीरो मान लेता हूँ मैं। ओवरऑल मोड जीरो होगा, वो कैसे निकालेंगे हम? वो कैसे निकालेंगे? पहले देख सम कैलकुलेट करेंगे, सम क्या होगा शुरू शुरू में जीरो, और सम कैलकुलेट कर लो ना इससे, सम कैलकुलेट कर लेंगे हम। वो क्या होगा? सम प्लस इक्वल टू, सम इक्वल टू, और देखो सम प्लस, मैंने ये क्यों किया है बताता हूँ, रुको। हम तो डायरेक्ट सम भी कर सकते हैं ना, सम प्लस इक्वल टू नम्स ऑफ आई, अब मॉडलो पे निकाल, इससे ओवरऑल मॉडलो आ जाएगा जो बाकी सम होगा ना। तो ओवरऑल मॉडलो क्या होगा तुम्हारा, इसको इधर से कॉपी एक्स करके, हाँ यहाँ पेस्ट कर दे, क्योंकि दोबारा से वेरिएबल लिखना सही नहीं लगता। तो इसको सम कर देंगे, ओवरऑल मॉडलो तुम्हारा ये आ गया, समझ गए? तो ये हो गया। अब हम ट्रेवर्स करेंगे, करंट मॉडल निकालते रहेंगे। अब देखो मैप बनाना पड़ेगा स्टोर करने के लिए, ये तो मैं भूल गया। अनऑर्डर्ड मैप बनाया तुमने स्टोर करने के लिए, जो कि इंट कॉमा टाइप का होगा। और शुरू शुरू में मैप की जीरो की वैल्यू -1 होगी, ये मत भूलना। ये बोलोगे तो तुम्हारा काम हो गया। तो अब देखो करंट मॉडल निकाला हमने, करंट मॉडल निकालते चलेंगे, मॉडलो निकालते चलेंगे, वो शुरू शुरू में जीरो होगा। करंट सम कर लो या मॉडलो कर लो, पर सम करते हैं पहले। करंट सम, करंट सम करो यार, मॉडलो करता हूँ यार, मजा नहीं आ रहा सम। करंट मॉडलो, करंट मॉडलो लिखा रहा हमने, तो आई लेस देन एन एम प्लस प्लस, ये करा तुमने, ठीक है। देखो करंट मॉडलो क्या होगा, करंट मॉडुलो इक्वल टू क्या होगा, करंट मॉडलो प्लस नम्स ऑफ है, इसका मॉडलो लिखा रहा पी से, ठीक है। ये तो हो गया तुम्हारा करंट मॉडलो। अब देखो चेक करना है नीड, हमारी नीड क्या है कि वो डिलीट करना है, मतलब वो पेयर आया है ना पूरा, मतलब ये पूरा सम होगा और वो पूरा डिलीट करना है हमें। तो उसको कैसे करेंगे, वो होगा तुम्हारा करंट मॉडलो, मॉडलो माइनस ओवरऑल मॉडलो, ओवरऑल मॉडलो में से करंट वाला हटा देंगे,
मतलब ओवरऑल 7 आया था हमारा, तो हमें 7 का कहीं मिल जाता है, उसको रिमूव कर देंगे तो बाकी बचेगा 0 आएगा, जो कि आंसर होगा, जो कि मतलब p से डिविजिबल होगा। मतलब p तो प्लस कर रहे हैं कि ओवरऑल ये पूरा नेगेटिव ना चले जाए, क्योंकि मैप में हम पॉजिटिव स्टोर करेंगे, समझ गए। अब देखो हम चेक करना है कि हमारा mp डॉट फाइंड मतलब मैप में नीड प्रेजेंट है, मैप में नीड प्रेजेंट होगा तो हमारा आंसर को अपडेट कर देंगे। आंसर इक्वल टू आंसर बनाना पड़ेगा ना पहले, आंसर इक्वल टू आंसर हम मैक्सिमम कितनी लेंथ हो सकती है, हम पूरा मैक्सिमम एरे बना लें, उसकी लेंथ हो सकती है, जो कि आंसर n से मैक्सिमम होगा। तो आंसर इक्वल टू क्या होगा, मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा i माइनस एमपी ऑफ नीड करेंगे। यस बॉस। अब देखो i माइनस सी, क्योंकि हमने इंडेक्स स्टोर कर रहे हैं, ये थोड़ा सा सोच लो यार, मैं बताऊंगा नहीं इतना। अब देखो स्टोर कर रहे हैं हम एमपी ऑफ करंट मॉडल इक्वल टू नीड, नीड नहीं इंडेक्स। हाँ समझे, बस ये तुम्हारा हो गया। लास्ट इंडेक्स हम फाइंड करना है, क्योंकि हमें शॉर्टेस्ट चाहिए, क्योंकि तो हमें पहले 0 मिल गया, बाद में 0 मिल गया, तो हम आखिरी वाले करेंगे, शॉर्टेस्ट जो मिलेगा वही, तो आखिरी वाले इंडेक्स को अपडेट करते रहेंगे करंट मॉडुलो से। तो अब आखिरी में क्या करना है, रिटर्न कर देना। अगर हमारा आंसर n के इक्वल हुआ, मतलब पूरा लेंथ जो हमने पहले लिया था और लेंथ के बराबर ही आ गया, तो रिटर्न -1 कर देंगे, नहीं तो क्या रिटर्न करेंगे, आंसर रिटर्न कर देंगे। बस हो गया, बस आ जाना चाहिए आंसर। देखो देखते हैं, रन करो रन करो रन करो। कंपाइल एरर, ये ये देखो समझ में आ गया होगा। रॉन्ग क्यों आ गया, रॉन्ग क्यों आ गया, अच्छा देखो, अरे यार देखो, शुरू में हमने ये लिखा रहा सम, मतलब अब सम ही तुम्हारा शुरू में 0 आ गया, मतलब ओवरऑल मॉडलो पहले 0 आ गया, तो चेक करना है ना, ओवरऑल मॉडलो पहले ही 0 आ गया तुम्हारा, तो हमें लेंथ की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, तो हमें रिटर्न 0 कर देना है। हाँ ये भी ठीक था, सबमिट कर लेते हैं। ये ये तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और हाँ, ये देखो यार, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट करो, और इसको भी, ये नीचे वाला कॉम्प्लीमेंट यार होना चाहिए यार, थोड़ा सा अच्छा लगता है। चलो ठीक है, गुड बाय।